रिकॉर्डिंग किया तो स्क्रीन बीच में आती है। फिर से सूक्ष्म क्रिया से शुरू करेंगे। पहले पैर आगे, फिर घुमाएंगे लेफ्ट साइड, अंदर की ओर, राइट साइड और आगे 4 बार घुमाएंगे। फिर इसका रिवर्स करेंगे। फिर से 4 बार करेंगे। फिर अब थोड़ी सी घुटने के लिए एक्सरसाइज। पूरा जमीन से पैरेलल रखें। 10 का एक सेट करते पहले। लेफ्ट में और एक सेट करते हैं। पैर का पंजा जमीन से पैरेलल हो। पैर को गोल घुमाएंगे। पहले राइट फिर लेफ्ट करेंगे। जितना हो सके बड़ा सर्कल करें आप। रिवर्स में करेंगे। अब लेफ्ट वाला। I'll do reverse. Make sure our leg is straight. मेरे हाथ के ऐसे मुट्ठी कर ली मैंने और इसके नीचे रखा, घुटने के नीचे। फिर सीधे पैर उठाया आगे से। फिर थोड़ा ऐसे कर लिया। थोड़ा रिलैक्स। थोड़ा स्ट्रेचिंग और ज्यादा। पैर मैंने यहाँ पे लिए। अब पैर को पैर के पास में सर लेके जाओ। कोशिश करते हैं कितना कर सकते हैं। और थोड़ा पैर नजदीक लाए। और थोड़ा नजदीक। ज्यादा से ज्यादा झुकने की कोशिश करें। You have to bend from lower back. Try to touch your feet. Now again, I'm taking my leg here close to my body. Do again. From here, starting from here. A bit close to my body.
it's very difficult when it comes as close as body. Relax. Now I'm holding my right toe with my left hand and then making circle. 1, 2, 3, 4 circles. 4. And reverse. Make sure when my leg should be straight when it goes straight. Then go in front of my 4. Now left toe with right hand. 1, 2, 3, 4. Reverse. 1, 2, 3, 4. Again relax. आराम से बैठ जाएंगे. अभी थोड़ा हाथ के लिए एक्सरसाइज कर लेंगे. यहाँ पे हमें एल्बो से मोड़ना नहीं है. अब इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Now for shoulder. 5, 6. We'll reverse. 1, 2, 3. A little bit stretching. Now I'm holding my both leg with each other. 1, 2. अभी राइट हैंड से मैं लेफ्ट कलाई मोड़ पकड़ रही हूँ. फिर पूरा सर्कल करेंगे. 4. अब लेफ्ट में करेंगे. 1, 2, 3, 4. थोड़ा रिलैक्स. गर्दन के लिए गर्दन नीचे पहले, फिर लेफ्ट. ब्रीदिंग पे फोकस करें. 4 टाइम्स करेंगे. 3, रिवर्स में 4 टाइम्स.
थोड़ा रिलैक्स, एक दो ब्रीथ इन करेंगे, डीप ब्रीथ। अब 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ज्ञान मुद्रा, ये दो उंगली पहली, थंब और फर्स्ट फिंगर, ज्ञान मुद्रा। 3 बार ओम की ध्वनि, ओ लंबा बोलेंगे और म छोटा। डीप ब्रीथ इन, मूल बंद। थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, फिर बाहर। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम हाथों का सहारा लिए बगैर उठने की कोशिश करेंगे। 3 बार करेंगे। इस तरह से करते हैं। ओके, और एक बार। एक साइड पे पैर लेंगे, फिर कोशिश करते हैं। अभी और कुछ नया ट्राई करते हैं, लेफ्ट साइड से करेंगे। थ्री टाइम्स। अब हम ताड़ासन करेंगे, हाथे से इंटरलॉक करके ऊपर ऊपर हाथ खींचे, पूरा ताने ऊपर से। Stretch your hand up and then stand on your toes. Relax. Again, stretch up and stand on your heel. Now relax, stretch on your side. Now, inside of your feet. I'm standing on inside of my feet and stretch up as well. Now we will do Trikonasana. I have big gap as much as I can, and then both hands. Sorry. And up, stretch up, and then go on your left. And my left hand is near my left foot, and right hand is parallel to the floor. And stretch. Now come back, and then now left hand. Left hand up, stretch up, and turn on right hand side. My right hand is next to my feet,
and left hand is parallel to the floor. Now we'll do 10 times. One, two, three, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now I'm going to start Surya Namaskar. So you come in front a little bit, 1/3 position from on floor. Hold your hand. Breathe in. Om. Om Suryaya Namaha. Om. Take your hand up. Stretch up. Bring your chin down and hands behind the shoulder. Little bit. Go back. Now, your hands should be touching your ears and come down. Paschimottanasana. Now, try to touch your head to your knee. Right leg behind. Left leg behind. Paschimottanasana. Parvatakasthi. Dandakar. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. Parvatakasthi. Right leg in front. Take in both hands. Look up. Take the back down. Left leg in front. Again, try to touch your head to your knees. Hands up then. Make sure your hand touch your ears. Go back from the lower back. We'll do 4 times. Finish 1 time, so second time now. Oh. Hands up. Touching your ears. Pull up. Paschimottanasana. Parvatakasthi. Dandakar. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. Parvatakasthi. Left leg.
leg behind. Paratakarsiti. Dandakar. Astanamasana. Bhujangasana. Paratakarsiti. Now last one. Left leg behind. Right leg behind. Paratakarsiti. Dandakar. Astanamasana. Bhujangasana. Paratakarsiti. Left leg front. Right leg. Again, try to touch your knee. We finished 4. Now we'll do Savasana. Relax. Savasana is relaxing position. Sleep on my back. Around 1 to 1.5 feet gap. And then palm facing up, facing the sky. Deep breathe in. When you breathe, count up to 4. And then when you exhale, you count from 4 to 10. Close your eyes. Relax. Your all body should touch to the floor wholly. Your hand, your feet. Make sure all touch to the floor properly. When you inhale, you feel like your energy is coming inside your body and then it's going out from your feet. You have to feel like that. Okay. Now I'll do Tadasana in the same position. Hands up. A bit closer. So you can see me properly. Now stretching my legs down, feet, hands up, and stretching upside and legs downside. I'm stretching. At the same time, I have Mul Bandh, which is I'm tightening my pelvic muscles. And then my neck, I'm taking deep breath. And neck, sit down. And holding. It's Jalandhar Bandh, Udiyan Bandh, and Mul Bandh, 3 bandh at the same time.
Relax. Do it again. Relax. Now we'll do Nokasana. 10 times I'm going to do. Make sure your hands are next to your ears and both legs together and they are straight. Hands are straight. Four. 5. 6. 7. 8. 9. And the last one I'll hold afterwards. This is the last one. I'm going to hold it back. I'm giving support to my back. Now I'm going to relax now. Relax for a while. Same position, Shavasana. Now I can do Uttana Padasana. For that, I'm putting my hand, palm is down, my hands below my thigh, and then both legs together up. बोला था ना इसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो नावासन, जब नाव आसन किया आपने, इसके बाद में इसका उपासन क्या हो सकता है, मत्स्यासन या चक्रासन। अच्छा जी, पहले उसको करें। अर्ध मत्स्यासन, अच्छा जी, मत्स्यासन करते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो चक्रासन, कंधार आसन कर सकते हैं। तो तीनों में से एक आसन करना। अच्छा जी, तो पहले अच्छा ठीक है, कंधा आसन कर लेते हैं। Hold your legs from knee and then bring your back up. And then you can hold it. Hold your ankle with hand. For variation, you can do that. Move 4, 10 times. Relax. Do it again. Hold it. In this position, we can do some variation. I'm holding my right leg up and back is up as well. And hands taking support. Palms down. Relax. Again. Up. Left leg up. Hold. Down. Relax. Can you do Makarasana now?
Makarasana. Keeping my feet close to my body, hands on both sides. Now I'm going on the right, feet turning right. Now my feet is on another feet and knee is on another knee, and my face is on the opposite side. So in this position, my back is twisted. Come in the center. I'm going with the left and face on the opposite side. Knee on the knee and one feet on the another one. Now relax. Now I'm taking right leg up, holding with my left hand, and then taking on the left hand side. Face on right. Left leg up, holding with right hand. Going on the right side. And then face on left. Okay. Now I'm doing some stretching, which is good for leg. Left leg up and right hand up. And left hand above my head. And right leg is up around 1 foot from the floor. So left hand is up. I'm changing the position. Now right leg and left hand is up. And the other pair is above the floor around 1 foot. This is very good for stomach muscle. Make sure this is on 90 degree, both. Changing again. Opposite leg. Changing. Relax. And sleep on the tummy. Do Salvasana. My palm is up, below thigh. And both legs together and up around 1 foot from the floor. And both legs are straight. We'll hold for 50. If you're tired, you can put your legs down and then go up again. Relax. Dhanurasana now. Holding my right leg with my feet
with my hand, holding my ankle. Bring your knee up as much as you can. Up in the sky. Let it go. Now left leg. Hold from ankle or maybe from here. Bring your knee up in the sky. Let it go. Now both legs together. Knee up in the sky. And then your face up and try to rock. Relax. Now do Sarvasana. So hands. अब सर्पासन की क्या जरूरत रही जब आपने कर लिया, पेट पे प्रेशर डाल दिया, तो अब बैठ के करवाइए, अब बैठ के करवाइए कुछ। बैठ के। अच्छा जी। Now we are doing left leg is straight. Right foot I'm putting next to the left knee. And then right hand is behind. And from left hand, I'm holding my right toe. And stretch your shoulder back on the side. Now right leg is straight. And then left foot is next to the right knee. Left hand is behind. Right hand is from right hand I'm holding my left toe. Feel the stretch. Relax. Now we're taking Gomukhasana. So I have to sit on my heel exactly in the middle, and then right leg on the top of the left knee. Now my right leg is up, so I have to bring my left hand up, and then I'm holding with my other hand. Shoulder should be straight. This is Gomukhasana. Now I'm changing my leg. Left knee is up, so my left hand is up, and then holding it with my another hand from behind. Shoulder straight, face up. आप कटी चक्रासन कर लेते हैं. We are going to do Kati Chakrasana. Left hand is behind. Left hand is behind. And then right hand is up. Breathe in, stretch up, and then touch my left
toe. Now changing the position. Left hand is up, right hand is at back, and then from left hand I'm touching my right toes. We do 10 times. Three. 5. 6. 9. Bring your body down as well. Now we'll do Konasana. That is opposite of this one. So my hands are behind my body, and then fingers are at back. And then I'm going to do Konasana. For that, my legs are straight and lifting my body from my back. Face up. My body should be in straight line. This is Konasana. Relax. You can do again. Breathe in when you go up. And up your body. Now I'll do Mandukasana. For that, I have to sit in Vajrasana, which is that. Now I have my both fist next to my navel. While exhaling, I'm going down and face up. Come back. I'm putting my hand in this position, left, and then right hand on my left hand. Inhale, and I'll go down while exhaling and twist down my hand like that. While I'm down, now I'm turning my hand. Now I'm making hole like a circle, and then little bit small circle, and then putting on my navel, and then pressing with right hand and going down. So it is giving a lot of pressure on my navel, belly button. Relax. अब आप ले रहे हैं भाई साहब? 45 हो गई? नहीं, चलिए अभी करिए। अभी वो तो अभी आप उष्ट्रासन या सुप्त वज्रासन करना है ना आपको? Ushtrasan, for Ushtrasan. I'm standing on my knee. And then my thumb here. Going back.
my upper body part is going back, and then holding my heels and feet, and my back should be up. My neck is down. I'll do it again. In this sideways, you can see me. सिंहासन। उत्पन्न सिंहासन करना है, ठीक है। और सिंहासन I'm folding my legs, and then now I'm doing Sinhasana. My hands opposite, my palms in opposite direction, and then I'm going down from my back, and then taking off my feet, turn out. First one. Come back. ओवर टू भाई साहब। Over to भाई साहब और श्रीवास्तव जी के लिए। कौन से वाले भाई साहब? वही वाले जो बोल पड़े। आपको बताना पड़ेगा ना कौन से वाले भाई। छोटे वाले सब जानते हैं। थैंक यू भावना। चलिए थोड़ा हंस लेते हैं। दिख रहा है ज्यादा ब्राइट हो रहा है पीछे। सब गुड। मेरा छोटा लाल भी साथ में है। चलिए बड़ी चक्की चला लेते हैं। पार्टी की तरफ चलते हैं। थोड़ा मिर्च मसाले वाला खाना खाया जाए थोड़ा सा। और अभी हमारे को मिर्ची लग गई अच्छे से,
चलिए अब थोड़ा ताकत आनी चाहिए हमारे अंदर, बादाम और मिश्री वाला थोड़ा दूध पी लिया जाए। ओ चलिए पानी में चलते हैं। थोड़ा सा किसी ने आइस पैक पीछे आपके डाल दिया, आप नाच रहे हैं उसको लेके। ढूंढ के आते हैं कि शरारती बच्चे ने ऐसा किया था। छोटे छोटे शरारती बच्चे उनके माँ बाप से शिकायत करके आते हैं। शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे माफी मांगते हैं हम सबसे हाथ जोड़ के। कोविड लॉकडाउन में बहुत सारी पार्टी हो गई है। अब हनुमान जी वाली हमारे अंदर वो आ गई, ताकत आ गई है थोड़ी। हनुमान जी वाली हंसी हंसते हैं जोर से। शेर की तरह दहाड़ लेते हैं। छोटे लाल ज्यादा परेशान ना हो। जी बाहर सूरज देवता निकलने वाले हैं। पक्षी की तरह थोड़ा उड़ते हैं हवा में, आकाश में। तो आंखें बंद करके उड़ेंगे और थोड़ा इमेजिन करिए, कुछ सोचेंगे नहीं, खाली अच्छी अच्छी चीजें इमेजिन करेंगे। हम आंखें बंद करके धीरे धीरे उड़ना शुरू करते हैं। ओ हो आ हा 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 ऐसे उड़ते जाइए आकाश में धीरे धीरे। मस्त अपने सोचिए
लॉकडाउन क्या हो रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है इसका, हमारे दिमाग को शांति मिलनी चाहिए, इससे परेशान नहीं होना चाहिए हमें। धीरे धीरे अपने दिमाग को शांत करके सोचिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह रोज हमारे साथ योगा में जुड़ सकते हैं। जिन लोगों को सुबह जल्दी दिक्कत होती है, दिन में भी 2 सेशंस होते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और सुबह बोला जाता है कि जो शुभ मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त जो है वो करीब सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले शुरू होता है। आजकल सूर्योदय 7 बजे शुरू हो रहा है, तो लिटरली 5:30 पे शुरू होता है और 6:15 बजे करीब खत्म हो जाता है आजकल। तो उस टाइम पे अगर आप उठ के नहा धो के 5:45 बजे हमारे साथ जुड़ रहे हैं 5:45 पर, तो आपका दिन बहुत शुभ जाएगा, शांति रहेगी दिमाग में, आपका बहुत सुंदर रहेगा दिन। ऐसे उठते जाएंगे हवा में, इमेजिन करिए बाहर कितना अच्छा दृश्य है, सूरज उगने से पहले, सूरज उगने में कोई 5 मिनट बाकी हैं, इतना अच्छा मौसम बाहर नजर आ रहा है, हल्की हल्की ठंड है, घूमने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। वैसे कोविड में अलाउड नहीं है, लेकिन अब वॉक के लिए जा सकते हैं। खाली दिमाग करके एकदम शांत प्रवृत्ति से आप टहलते रहिए, ऐसे चलते जाइए, नीचे देखिए कितना सुंदर दृश्य है। पैरामाटा रिवर के ऊपर से जाते हुए हम बोटेनिकल गार्डन पहुंच गए हैं। वहाँ इतना सुंदर वो हो रहे हैं, फूल पत्तियां पेड़ पौधे, खूब मस्त मौसम है। ओपरा हाउस, हार्बर ब्रिज, घूमते हुए हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, वापस अपने आसन पर धीरे धीरे आ जाएंगे। इमेजिन करिए कितना सुंदर आपको लग रहा है, दिमाग शांत हो गया होगा, धीरे धीरे वापस अपने आसन पे बैठ के बैठ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपका दिन शुभ हो। एंड भाई साहब थैंक यू भाई साहब। तो कोई प्राणायाम करवाना चाहता है? एंटायर हाफ एन आवर। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, लंबी गहरी सांस का अभ्यास करें। सांस को धीरे धीरे भरें, लेकिन भरने में समय कम लें। जब पूरी सांस भर जाए तो मूल बंद लगाएं और सांस को धीरे धीरे खाली करें, ज्यादा समय लें। एक बार देख लें हाथ को, मैं सांस भर रहा हूं, रुक गया, निकालने जा रहा हूं, ये गति रखिए 2 बार और। जब सांस भरें तो पेट नहीं फूलना चाहिए, निकालेंगे तो पेट तो अंदर जाएगा ही जाएगा। किसी को भी अगर पद्मासन में बैठने में दिक्कत होती है तो वज्रासन में बैठ करके हम प्राणायाम कर सकते हैं ना? पर ध्यान रखें हमारी रीढ़ एकदम सीधी रहे, गर्दन नीचे ना आए, सीधी रहे या थोड़ी सी ऊपर 2 अंश। तो शांत एक ओम की ध्वनि करेंगे प्राणायाम से पहले। सांस भरें, ओ। शांत। थोड़ी सी, अभी भाई साहब ने बोला थोड़ी ठंड है, भाई हाँ टेम्परेचर यहाँ का 4 डिग्री सेल्सियस जहां मैं बैठा हूं, तो थोड़ी सी गर्मी आ जाए। हम सांस भर के हाथ को ऊपर फेंकेंगे और सांस निकाल के नीचे लाएंगे। आपको दिख जाए तो अच्छी तरीके से हाथ ऐसे खुलना चाहिए। और हम रोज बताते हैं आपको, लेकिन आप लोग ऐसे कर लेते हो, ऐसे ऐसे थोड़ा करना, सांस भर के ऊपर यहाँ पर आना चाहिए। तो हम करते चलेंगे, देखते हैं कितनी बार करते हैं। मेरा साथ दे दो, मैं भी बूढ़ा आदमी। चलो शुरू करो, स्पीड मत बढ़ाना है।
ऐसे बैठ। वज्रासन में अगर बैठे थे तो पीछे से पैर मिला रहे तो आगे से पैर खोल लो, घुटना, और फिर लो। चलो अब रिलैक्स हो गया होगा, थोड़ा बैठ लो। आज हम कपालभाति एक नाक से पहले करेंगे, फिर दूसरी नाक से करेंगे, फिर दोनों नाक से करेंगे। आपके पास समय है इस समय पूरे 5 मिनट कर लें, देखते हैं क्या होता है। एक नाक से। तो प्राणायाम की मुद्रा होती है, देखिए ये हाथ की आप मुद्रा लगा लें, ये वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जो भी लगा। पृथ्वी मुद्रा आजकल लगा सकता है कोई भी, क्योंकि आपको गर्मी की जरूरत है। ये रिंग फिंगर को ऐसे ट्विस्ट करके यहाँ पे कर देते हैं, ये देखिए, बाकी अंगूठे से इसको हम प्रेशर करते हैं। तो ये तो पृथ्वी मुद्रा हो गई। अब हम दूसरे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, 2 उंगली यहाँ, ये। तो जब भी हमें राइट हैंड होना चाहिए, जब भी हमें दाहिनी नाक बंद करनी है तो अंगूठे से, लेफ्ट वाली बंद करनी हो तो अपने रिंग फिंगर से। तो हम चलते हैं दाहिनी तरफ से, सांस को कपालभाति दाहिनी तरफ से करना है। चल, केवल थ्रोइंग है, इनहेलिंग इज सेल्फ हो रही है, अपने आप हो रही है। फोर्स और स्पीड हम सांस को फेंकने में ले रहे हैं, यानी एक्सलेशन पर। मूल बंद लगा है, पेट अंदर जाता है जब मैं सांस निकालता हूं। अब चलिए दूसरे नाक से कर लें। अंगूठा बंद, अंगूठे से अपने दाहिनी नाक बंद करें और लेफ्ट से सांस को फेंकें, ऐसे ही जैसे अभी कर रहे थे। अब दोनों नाक से जैसे कपालभाति करते हो करो, दोनों हाथ अपनी मुद्राओं में रखो, गर्दन नीचे मत रखना, या तो लेवल में या तो थोड़ी सी ऊपर।
पूरी सांस निकाल दो और निकली हुई सांस में रुको। देखो कितनी, तीनों बंद लगाते हैं जिसमें मूल बंद नीचे से, दो निष्कासन है उनको टाइट, पेट अंदर, थोड़ी छाती के साथ, पेट अंदर जाल अंदर, उड़ान बंद, थोड़ी छाती के साथ जाल अंदर करना, जबरदस्ती नहीं रुकना। रिलैक्स कर लो। एक बार इतनी देर में नहीं बैठ सकते तो 2 बार बैठ लो। सांस भर लो, फिर रुको उसी स्थिति में, है जिसको हम बाह्य कुंभक बोलते हैं, आंतरिक कुंभक बोलते हैं। ज्यादा नहीं रुकना, इसमें कम रुकना। रिलैक्स करें। दिमाग को ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, लेकिन इसमें ज्यादा देर तक नहीं रुकते क्योंकि ऑक्सीजन की इनटेक कम हो जाती है। तो गर्मी का महीना है, ठंडक का महीना है। आज हम सूर्य भेदी प्राणायाम करने चल रहे हैं। हम 2 विधियां बताते हैं आपको। एक हाथ की तो ज्ञान मुद्रा ही रहती है, दूसरे हाथ की प्राणायाम मुद्रा ही रहेगी। सूर्य भेदी इसको इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे शरीर को गर्मी देती है, क्योंकि सूर्य जो है गर्मी का प्रतीक होता है। तो हम हर सांस को राइट से लेंगे, रुकेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर दूसरी सांस राइट से लेंगे, रुकेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। छोड़ने में ज्यादा समय, लेने में और रुकने में कम समय। आप अपने हिसाब से रुक लीजिए। हम तो ऐसा करते हैं कि एक गायत्री मंत्र भरेंगे, एक गायत्री मंत्र में रुकेंगे, 2 गायत्री मंत्र में निकालेंगे। आप अपने हिसाब से, जबरदस्ती कुछ मत करें। शुरू कर दें? किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए। हर सांस को राइट से लेना है और लेफ्ट में निकालना है। इनहेलिंग फ्रॉम योर लेफ्ट, राइट, एंड होल्डिंग, एंड देन एक्सहेलेशन फ्रॉम योर लेफ्ट। और जिस समय हम रुकेंगे उस समय त्रिबंध होगा। हाँ, कभी भी आपको समझ में नहीं आए प्लीज पूछिए। मतलब अगर इसमें नए साधक हैं और वो नहीं पूछ रहे हैं, बैठे हुए हैं ऐसे, तो कैसे काम चलेगा? है, अपना ऑडियो खोलिए और पूछिए। कुछ भी हम करें तो हमारे समझ में आ जाना चाहिए, उसका फायदा क्या होता है, उसके नुकसान क्या होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में इसको मना किया जाता है? भाई साहब, निकालने के बाद भी रुकना है? निकालने के लिए आप रुक सकते हैं। जब हमने बता दिया कि रुक सकते हैं आप निकालने के बाद, हमने ये बताया कि आप निकालने में जब ज्यादा समय ले लोगे तो फिर निकालने के बाद रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ओके, ठीक है, थैंक यू। सॉरी फॉर इग्नोरेंस। मूल बंद के बारे में एक बार बताएंगे जरा। मूल बंद हमारे 2 निष्कासन अंग नीचे के होते हैं, एक यूरिनरी और एक दूसरा हमारा रेक्टम। इनको टाइट कर लेना मूल बंद कहलाता है। और अगर हम पेशाब के रास्ते को टाइट करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो हम केवल अपने रेक्टम को ही टाइट करें तो उसको हम अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। ओके, थैंक यू। वो नाड़ी शोधन में हम करते हैं, निकालने के बाद रुकते हैं। इसमें निकालने के बाद आपको रुकने की जरूरत नहीं होती।
आप जैसे 1:1:2 इतना कर लें, मतलब आप समझ गए ना। अगर 10 में सांस भरते हैं, 10 में हम रुकेंगे और 20 में सांस को निकालेंगे। ये हो। यानी एक गायत्री मंत्र में सांस भरें, एक गायत्री मंत्र में होल्ड करें त्रिबंध में, और 2 गायत्री मंत्र में सांस को एक्सेल करें अपोजिट। तो हम आखिरी बार कर लेते हैं, उसके बाद रुक जाएंगे। हाँ, आखिरी बार मीन्स एक्सेल करने के बाद आप रुकते हैं। अब करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम, जो इस समय बहुत जरूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर में थोड़ी सी गति उसको धीमी रखेंगे, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो सब कर सकते हैं, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे लो हो, चाहे कोई प्रॉब्लम। इस हाथ की मुद्रा वैसे ही रखें। ये चिन्ह मुद्रा होती है, क्योंकि इसमें सपोर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि जब फोर्सफुली हम करते हैं तो हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एक चिन्ह मुद्रा होती है, जैसे ज्ञान मुद्रा में हम लगाते हैं वैसे चिन्ह मुद्रा, लेकिन ज्ञान मुद्रा में हथेली ऊपर होती है, चिन्ह मुद्रा में हाथ नीचे होता है, तो आपका सपोर्ट भी मिल जाता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम हमेशा हम शुरुआत राइट से करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो है अपने शरीर को गर्मी देना, तो हम राइट से ही एक्सेल और राइट से ही इनहेल। चलिए हमारे साथ। भरिए, रुक जाइए त्रिबंध में। आराम से बंद खोलिए और अपने लेफ्ट साइड से सांस को धीरे धीरे एक्सेल, थोड़ा रिलैक्स। किसी को चक्कर आए, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। अब हम दूसरी बार में हम थोड़ा सा हम और तेज करेंगे उनके लिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चलें। अब लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से ही निकालें। सांस भरें, रुकें और दूसरी तरफ से निकालें। तो जल्दी से करने से हो सकता है चक्कर आ रहा हो, और अगर ऐसा है तो हो सकता है आपको बीपी हाई हो। अब अनुलोम विलोम करेंगे, लेकिन ये अनुलोम विलोम भस्त्रिका वाला हम राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से, यानी शुरुआती हम राइट से करेंगे और एंड भी हम राइट से ही करेंगे। हाँ, सारी चीजें वही हैं। तो पहले आप देखें कि कैसे करते हैं, सही हो रहा है कि नहीं। जब सही होने लगे तब आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए, शुरू कर दें। चलिए, फास्ट कर सकते हैं। ये स्पीड जो मैंने किया है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए है, इससे स्पीड बढ़ाएंगे नहीं। चलें। कुछ पूछना? नहीं। अरुण जी, आपकी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो समझ नहीं आई इंस्ट्रक्शंस।
मेरी ऑडियो कैसे अपने आप डिस्कनेक्ट हुआ? अभी तो है? अभी तो आई है, बट जब लास्ट में आई थी तो वो टुवर्ड्स द एंड आई थी, तो वो इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आई। ये तीसरी ये वाली तो बताएं, हमारे अनुलोम विलोम वाली। ये जो अभी आप करा रहे थे वो वाला इंस्ट्रक्शन। हाँ, हमेशा इनहेल राइट से, एक्सहेल लेफ्ट से करनी है, और फिर शुरुआती लेफ्ट राइट से करनी है, और अनुलोम विलोम भी हमें करना है, एंड भी हम राइट में ही करें। मैंने ये बताया कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, स्पीड कैसे होगी वो देख लीजिए, और अगर बीपी नहीं है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम जब बढ़ाएंगे आप, तो देखिए कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, जिधर से हम निकालेंगे उधर से ही भरना होता है, इसका अपना ध्यान रखिएगा। तो पहले हम बता रहे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की ट्रबल है कैसे करेंगे। आप फ्री हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं चल करते रहें। एंड कर दिया मैंने। अब देखें फिर से, अगर आपको ड्राउजीनेस आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको धीरे से करना था, और हो सकता है आपको बीपी हाई हो, या हो सकता है आपको सर्वाइकल भी हो सकता है। तो थोड़ा रिलैक्स कर लें, क्योंकि अब देखें सांस कैसे चले। देखो आप, जब सांस एकदम न के बराबर हो जाए तो उसको हम केवल्य कुंभक बोलते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें न तो सांस लेने की इच्छा हो रही है, न तो निकालने की इच्छा हो रही है। एक ऐसी अनुभूति जैसे पता नहीं कहाँ का सुख मिल गया हमें। कोई आवाज नहीं, सब अपनी ही आवाजें आती हैं। आप देखो तो, और इस आवाज को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मनाद, जो सेल्फ साउंड क्रिएट करना है, और यही है जो आपके ध्यान में काम आता है। अब दोनों नाक से लेके और दोनों नाक से निकालेंगे। ये वाला नहीं, ये तो हम कर चुके हैं, तो गर्मी के लिए हमने किया था। हथेलियां ऐसे पलट कर, जैसे मैंने बोला था, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं। मूल बंद का बराबर ध्यान रहेगा, अश्विनी मुद्रा का। इसकी स्पीड को भी हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग को बराबर रखेंगे यहाँ, जैसे उस दिन मैंने टोका था उनको, देखिएगा जरा आप। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको एक्सहेलेशन में तो बहुत ताकत लगा देते हैं, लेकिन इनहेलेशन में नहीं लगा पाते हैं। दोनों बराबर बहुत जरूरी है, देखिएगा। और अगर आपको बीपी है तो कैसे स्पीड होगी? इससे स्पीड फास्ट नहीं। चलें कर लें फिर थोड़ा। देखो पेट अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं है, देर से बता रहा हूं। अब सांस भर के रुकना है, फिर बंद। रिलैक्स कर लो, ज्यादा नहीं रुकना। अब सांस निकाल देंगे, त्रिभंग। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज एक नया प्राणायाम देखते हैं, अंतराक्षेपी प्राणायाम बोलते हैं। जैसे सुदर्शन क्रिया में स्वामी उनके यहाँ 8 आवलियों में करवाते हैं कि खंडों में लेते हैं, खंडों में छोड़ते हैं, रुकते हैं। हमारे इसमें
जो है उसी से संबंधित रखता है, उसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। दोनों हाथ अपना ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। हमें खंडों में सांस भरना है दोनों नाक से और फिर रुक जाना है, और फिर खंडों में ही सांस को निकालना है। तो निकालने में जैसे हमें मालूम है ज्यादा टाइम लेंगे, भरने में हम कम लेंगे। तो भरने में कैसे ले लेते हैं? भर गया, निकालेंगे, फिर भरना। यानी होल्डिंग है तो निकालने पर, भरने पे होल्डिंग नहीं करना है, भरना है, निकालना। और फिर भी पूछ लो किसी को समझ में नहीं आया हो तो, नया है। फिर से बताएंगे एक बार? सांस खंडों में लेंगे, देखिए हमारे हाथ से समझ में आ जाएगा। लेंगे तो निकालेंगे नहीं, निकालेंगे तो लेंगे। हैं? देखो, समझ आ गया? हाँ जी। आवाज करना जरूरी नहीं है। आवाज तो मैंने इसलिए आपको लगा दी कि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। आवाज आना जरूरी नहीं है। हाँ? आप बाह्य कुंभक में रुक सकते हैं, सॉरी आंतरिक कुंभक में। जब सांस भर लो, थोड़ा रुक लो, उसके बाद निकाल लो। तो निकालते निकालते तो रुकने की तो हिम्मत ही नहीं रह जाती, क्योंकि पूरी सांस निकल जाने के बाद फिर क्या रखना है। तो देख सकते हो कि पूरी सांस निकली है कि नहीं निकली। आक्षेपी प्राणायाम हार्ट अपने लंग्स के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसको हम बहुत कम करते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में तो डेली होता है। उसको उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हम भरते हैं और निकालते हैं, एक बार पहले भी जिक्र किया था, तो हमारे थ्रोट पर प्रेशर जाता है। कैसे, देखिएगा जरा, निकालो, समझ गए? यानी थायराइड के लिए, लंग्स के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जो हम बहुत अभ्यास में कम लाते हैं इसको, लेकिन हमें सीख लेना है। लास्ट कर लें, निकाल के रुक जाएं। समय आपका होने वाला है। आज हम इतना ही कर पाएंगे। हम 2-3 बार भ्रामरी कर लें, उसके बाद लास्ट करते हैं। शांत बैठे, मेरी आवाज आ रही है तो आंखें अब बंद रखिएगा। एक अच्छा विचार 1 महीने के लिए हम आपको दे दें। कभी भी जब हम किसी से बात कर रहे हों, तो थर्ड पर्सन के बारे में तभी बात करें जब कोई अच्छाई हो, उसकी बुराई नहीं बताएं। 1 महीना इसका अभ्यास करके देखो, क्या आप कर सकते हो ऐसा? आज 3 जुलाई है या 4 जो भी है, ध्यान से आप जुलाई भर आपको इसका अभ्यास करें।
किसी के बारे में तभी बात करेंगे जब उसकी कोई विशेष अच्छाई हो बात। चलिए एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति कर। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में मिले गर्म करने के लिए। थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पर रखें हथेली, गर्मी लें, धीरे से सहलाएं अपनी बाहें, अपने हाथ। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर्मदे तो सरस्वती कर्मूले तो गोविंद प्रभाते कर्दक्ष। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, आप सभी शिक्षकों और ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद। फिर मिलते हैं 6:15 बजे।